ठीक है जी। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है जी सर, करो स्टार्ट। जी सर। ओके जी। Good evening, everyone. In this EAT study circle meeting, we will be covering the road ahead in the view of Supreme Court judgment and CBDT circular on section 148. And our guest speaker of the day is none other than Dr. C. Rakesh Gupta ji. He has accepted our request and joined us all the way from USA, around 13,000 kilometers away from us to enlighten our members. This meeting will be conducted under the guidance of CA Rajiv Kaushal ji, our study circle convener, with technical things carried out by me and Anshul ji. Queries and question and answer session will be taken up by Rajiv Sharma ji and Anshul ji. Members can raise their queries in the chat box or by raise of hand. I would request our members that the queries would be taken after the speaker has completed the deliberation or as our guest speaker seems fit. Members, I would also like to bring to your knowledge that we were shifting from Zoom platform to WebEx platform, but Rakesh sir wanted to go on Zoom as he is in USA. So this webinar is done on Zoom, but from next webinar, we will shift to WebEx. We have already shared link to the WebEx for different operating systems so that all the members could install it in their mobile on PC, and also mobile number of 2 of our members were shared for any technical help in its installation and working. We will again share it for your convenience. Now I would request our Bharti President C.S. Subhash Jain ji to welcome our guest speaker and members. Thank you, Mohit ji. First of all, very good evening to all of you. Respectable CA advocate Dr. Rakesh Gupta ji, the speaker for the today's deliberations, who is joining us from USA. Secretary General of Punjab Tax Bar Association, Shri B.R. Kaushal ji, and members and office bearers of other tax bar associations from the Punjab. CA Vikas Gupta ji, President, Indirect Taxation Consultant Association. CA Dinesh Sharma ji, member, Northern India Regional Council of the Institute of CA, Chartered Accountant. Subhash Bansal ji and other office bearers of the Ludhiana branch of CA. All past presidents of the DTBA, direct taxes, and of course the very members and office bearers of District Taxation Bar Association, direct taxes, and all my colleagues who have joined today. Welcome you all. It is indeed a pleasure to welcome you all on this webinar, which is for the deliberation on the topic which I think has become a sort of center point for discussion with all the professionals dealing in income tax, practicing in income tax. The way the government has introduced the section, new provisions, and the way in which the department officials misinterpreted the law, and overall, the way the Honorable Supreme Court has come to the rescue of the government is like a joke being played. I would say a नाटक suspense ऐसा है जिसमें आगे क्या होगा यही नहीं पता. The Honorable Supreme Court has invoked its powers under Article 142 of the Constitution to bail out the officers and the government because it could have caused loss to the exchequer primarily, and for fair justice to the government officials, and considering that the assessee will have the opportunity to represent before the AOs to defend their cases. So I don't know, when we talk about the loss to the exchequer, how many orders are quashed by the tribunal on technical grounds. There's loss of revenue there also. That's, I think, the government officials, whenever we meet, they want that this institution of tribunal should go because they quash our orders. And I don't know what is the accountability and responsibility
in respect of those of cases which got quashed on technical grounds or legal grounds, there is more loss of exchequer in those cases also, but there is no direction or order from the Supreme Court in this regard. Further, with this judgment of the Supreme Court to save the exchequer, now the assessing officers will be under pressure to save the exchequer and raise demands. Maybe legally good or not, because of the way the faceless assessments have been done in the last year, March 22, I think we are really worried about this thing, how the orders will come, considering the whole scenario. Further, Sir KG, in the new regime, among others, basic object of introducing Section 148A was to reduce litigation and to do ease of business. There are three more, they can be two basic objects were there, but the way orders under Section 148A(d) have been passed in the last week of March 22 and in the first week of April 22 is a matter of concern for all of us. If the senior officers are not willing to take decisions to drop the proceedings because they wish to save their skin, and they said we don't have staff, sufficient staff to deal with the cases, and the cases come to us pushed to us in the last week, so we don't have time to make inquiries, we don't have time to do justice. Therefore, we give approval to open the cases and let the assessee fight before the assessing officer, put up his case before the assessing officer. Sir, if that is the case, assessee तो राम भरोसे हो गया या फिर लिटिगेशन में चला गया. जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स था 148 लेकर आने का, उसके ऊपर रियली ग्रेट बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. सर, एक और इसमें एंगल है कि 148D के ऑर्डर्स जो हैं, they are passed after taking approvals from the senior officer, principal CIT or the principal CCIT. And assessment will be made by the assessing officer who is at the rank of ITO, ACIT or team of officers who are below the rank of CIT. Officers giving approval on the basis of inquiries made, information sought from the opportunity given to the assessee, 148D order is passed after that, and approval is taken after that. After considering the prima facie case, how the assessing officer will be able to drop the proceedings, who will be always worried कि मैं जब अगर ड्रॉप कर दूंगा, एडिशन नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे. जब सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बिगर रैंक आर कंसीडरिंग कि हमने बाद में जो क्वेश्चन आने उनको अवॉइड करने के लिए हमने अप्रूवल्स दे दी, केस खोल दिए, तो जो ऑफिसर एओ लेवल का है उसको कौन बचाएगा? वो तो इसका मतलब ये 148A का जो प्रोविजन आए हैं, जो सिस्टम मेथड बना था लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, ये तो लिटिगेशन मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो केसेस कोई भी ड्रॉप करने विल, लीगली स्पीकिंग दे आर सपोज्ड टू डू इट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 months, really a matter of pity and real matter of worry for all of us that judicious orders will come. I am really I don't think so. I am worried about that. Anyway, to answer such questions, I think there is no other person other than CA Rakesh Gupta ji who can give us his mind to bail us out. Supreme Court has bailed out the officers of the department. He will bail us out of all these dilemmas, and he will be taking care of all these things and advise us, guide us, suggest us what to do, how to do. And he is sitting in USA, a country where I think natural justice, which we are told is at a peak, and let this natural justice, sense of natural justice come to India also in the same way as it is prevailing there.
let this air also come to India, please. And I welcome you, sir, Dr. Kesh Gupta ji, for sparing your valuable time. And I think I should congratulate and thank Gulshan Badwa ji also, who had made this happen. Because earlier I was trying to get time from Dr. Kesh Badwa, he was busy and was not able to get time. But I Gulshan Badwa की बहुत चलती है, कहता मेरी केश गुप्ता जी के साथ काफी अच्छी मैं उनको सर माफी दे दीजिए सर। ये गुलशन बदवा जी हमारे टीम के सर बहुत पुराने मेंबर हैं, वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत डेडिकेटेड, हमारे जो एक सेवादार कह लो, वर्कर कह लो, एक प्रोफेशनल है हमारी टीम के, जो बहुत अच्छे मेंबर है। राजीव कौशल जी हमारे कन्वीनर है, पुष्कर सोनी जी हैं, राजीव शर्मा जी जो स्टडी सर्कल की टीम है, बाकी संगम जी है, अंशुल जी, ये सब हमारी टीम के हैं जो सारा कुछ मैनेज करती है। And I congratulate this team also, and I welcome all the dignitaries who have presidents and office leaders of other associations of CA bodies, and from all over Punjab. I've seen from Patiala, from other cities also, from Moga, from all other cities, people have joined today, and I welcome you all. And now, not taking much of your time because it is already 6:23. I think I hand over the mic back to Secretary. With these words, I welcome you again and thank you again for gracing and for coming to this webinar. Thank you very much. Thank you, sir, for such a warm welcome. Now I would invite our study circle member CA Gulshan Badwa ji to formally introduce our guest speaker. Thank you, Mohit ji. Very good morning to Dr. Kesh Gupta sir, and very good evening to esteemed members. This is happening for the first time in the study circle meet that good morning and good evening both are equally valid at the same point of time. Dr. Gupta has a very illustrious academic credentials starting from first rank holder in university, in graduation as well as in LLB. Further to this, he is FCA, FCS, AICWA, MBA, LLM, and PhD. He is practicing as advocate and argued high-profile cases and is appearing in income tax tribunals, high courts, and Supreme Court of India. He has also authored with his partner, Dr. Raj K. Agarwal, 2 books by taxman naming search, seizure, and assessment of such cases and taxation of real estate developers and joint development agreements. He has participated in United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and also member of International Association of Tax Judges. Last but not least, and a very less known fact about Dr. Gupta is that he's a very good Hindi poet who occasionally writes poem on current topics with a lot of precision in using the words. So I request Dr. Gupta today to share something about this also. When we see the academic and professional credentials of Dr. Gupta, he is nothing less than an institution in himself who is serving the professional brothers by sharing his invaluable knowledge and experience. With these words, I welcome you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Gulshan ji. We are already 140 members, and I think we should now start the deliberation of the sir. Sir, please, Gupta sir. Yes. Thank you, Honorable Shri Jain Sahab, Mohit ji, Gulshan ji, and very esteemed, and of course Shri B.R. Kaushal sir, very esteemed members of the bar and chartered accountants. Friends, I am delighted to be with all of you, and it has always been a pleasure, to be talking to the members of Punjab. And Jain Sahab ने ठीक कहा कि उनके कई फोन आए, लेकिन मेरे दांत में दर्द था, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका. ऐसा कुछ नहीं है कि गुलशन जी ने कहा तो मैंने मान लिया, जैन साहब ने कहा तो मैंने नहीं माना. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रोड अहेड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन एंड आफ्टर द बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन. Whether the road is clear or the road is obstructed,
We'll have to see. And since I will be speaking here as not a lawyer solicitor, but then as an independent analyst, so I will be speaking my mind fairly, even if speaking that way may not be a music to the ears of many of us. When it comes to fighting of the cases, then of course I mean we do as lawyer, but when we discuss some issue, then we discuss it as a part of academics also. So सबसे पहले now let us see as to what was the background of controversy. हालांकि जो आपका टॉपिक है road ahead, but then road ahead cannot be discussed and decided unless we see as to what was the contours or what was the background of the controversy. Though many of you may be knowing, but then it will be good if I lay down that controversy in its right perspective. देखिए, फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा रीओपनिंग और रीअसेसमेंट के क्षेत्र में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए गए, और जो चेंजेस थे वो इतने इम्पोर्टेंट थे और इतने घने थे और इतने भारी भरकम थे कि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी एरर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोनाफाइड एरर, तो चलो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के परे तो कोई कोर्ट नहीं है, तो अब हमको मानना पड़ेगा कि जो ये एरर हुई, लॉ चेंज होने के बावजूद भी जो नोटिसेस 148 के इशू कर दिए गए वो ऑफिसर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोनाफाइड एरर थी, तो चलिए हम मान लेते हैं। तो अब प्रश्न ये था कि 1 अप्रैल 2021 और 30 जून 2021 के बीच में जो 148 के नोटिसेस इशू हुए, क्या वो नोटिसेस बिना जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन था, जो न्यू प्रोविजन था 148A का, क्या उसके बिना कंप्लाई किए हुए, whether those notices which were issued under section 148 under the old law now could be said to be valid? देखिए, एक बात बड़ा फंडामेंटल इशू जो है वो ये है कि जो नोटिस अंडर सेक्शन 148 है, that is a notice which confers a jurisdiction. It is not a notice simpliciter. It is not like any other notice. It is a notice based upon which the jurisdiction is assumed by the assessing officer. Therefore, the question which arose was कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जबकि नया लॉ प्रभावी हो चुका था, जिसके की अंतर्गत 148 का नोटिस जब तक इशू नहीं हो सकता था जब तक कि 148 कैपिटल ए की सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर ली जाती। तो जब 148 के नोटिस 1 अप्रैल 2021 से और 30 जून 2021 के बीच में इशू हुए, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। और 148 जैसा कि मैंने कहा कि इट कन्फर्स ज्यूरिसडिक्शन, और जहां ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करने में बेसिकली यदि गलती है तो वो रिट में चैलेंज हुई। रिट दो इज एन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी, लेकिन यदि कोई एक्शन गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का या गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटीज का ज्यूरिसडिक्शनल और ज्यूरिसडिक्शन से परे है, तो कोर्ट्स ने कहा है कि हम अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में हमको जो प्रदान की गई है उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन इफ ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हों, because courts have said that why should we relegate an SSE to an arduous and treacherous route of appellate mechanism when the action of the authority is palpably without jurisdiction. तो अब डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इसके ऊपर रिट फाइल हुई। सारे हाई कोर्ट्स एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई 1 अप्रैल 2021 के बाद तो नया लॉ 148A वाला आ गया है, और चूंकि ये सारे नोटिसेस बिना 148A की कंडीशनलिटीज को कंप्लाई किए बिना हुए हैं, तो ये लिहाजा ये नोटिसेस बैड है।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ, यदि डिपार्टमेंट नाउ इज गिवन लिबर्टी टू इनिशिएट एक्शंस in accordance with law wherever the law permits them to initiate action. अब इन सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आशीष अग्रवाल का डिसीजन था। उस आशीष अग्रवाल के डिसीजन के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने स्पेशली पिटिशन दाखिल की। कुछ हम लोगों ने, हम 5-6-7 लोग जो दिल्ली में थे, हमने इंटरविनर्स के रूप में इंटरविन किया और अपना पक्ष रखा। लेकिन जैसा कि जैन साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि दिस वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स इन टैक्स प्रोसीडिंग्स where the highest court of the land, that is the apex court, that is the Supreme Court, invoked its extraordinary constitutional power under Article 142, and Supreme Court was impressed upon by the sheer magnanimous numbers where such kind of notices were issued. And therefore, Supreme Court said that we cannot afford to see so many notices being rendered as remediless. Supreme Court ने कहा कि इतने सारे notices को हम remediless होते हुए नहीं देख सकते, public exchequer involved है, और लिहाजा there was the possibility of a bona fide mistake which departmental officers committed unknowingly in a bona fide manner without any mala fide, assuming that these notices could be issued under the old provisions of law. And that is why Supreme Court said कि हम अपने आर्टिकल 142 द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त हमारी जो शक्तियां हैं उनका हम उपयोग करते हुए हम ये आदेश देते हैं। उन्होंने पैरा 8 और पैरा 10 में उन्होंने बड़े प्रिसाइज डायरेक्शंस दिए। वो प्रिसाइज डायरेक्शंस क्या हैं? बिकॉज आपका जो टॉपिक है रोड अहेड, तो रोड अहेड इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड रोड अहेड इन द लाइट ऑफ द सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 के बाद और 30 जून 2021 से पहले जो इशू हुए 148 में, उनको 148 ओल्ड लॉ के बजाय उनको न्यू लॉ में 148A के नोटिसेस मान लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 148 कैपिटल A में एक स्मॉल a है जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर्स मे कंडक्ट इंक्वायरीज इफ रिक्वायर्ड, तो उन्होंने कहा कि हम वन टाइम वेवर दे रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर्स मे नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी। और उन्होंने इस इफ रिक्वायर्ड को इंटरप्रेट भी किया, हालांकि प्रेजेंट कंट्रोवर्सी के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन आई मीन विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट वो शायद उतना करेक्ट नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है कि वो इंक्वायरी करे या ना करे, इफ रिक्वायर्ड के बेसिस पे। इफ रिक्वायर्ड जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो जो 148A में जो एक्सप्लेनेशन है कि सर्च के केस में या थर्ड पर्सन के केस में 148A की प्रोसीडिंग्स डिस्पेंस विद की जाती है, लेजिस्लेचर का अभिप्राय शायद उस तरह की सिचुएशंस को इफ रिक्वायर्ड के द्वारा निकालने का था। पर चलिए, वो इफ रिक्वायर्ड की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है वो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी जो 148A स्मॉल a में जो एनविसाज की गई है लॉ के द्वारा, वो हम इसे वन टाइम डिस्पेंसेशन के रूप में हम ऑर्डर करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस नोटिस इस डिसीजन के 30 दिन के अंदर द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो एसएससी को मटेरियल सप्लाई करें और जो इंफॉर्मेशन उनके पास है विच सजेस्ट्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, वो उनको सप्लाई करे एसएससी को, और वो सप्लाई करने के 2 वीक के बाद, 2 वीक के अंदर एसएससी उसका जवाब दें। तो ये उन्होंने जो 148 अंडर द ओल्ड लॉ जो नोटिसेस थे जो अंडर चैलेंज थे, उसको उन्होंने 148 कैपिटल A स्मॉल b का नोटिस होल्ड कर दिया और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दे दी। ये ध्यान रखना, ये टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस रोड अहेड के लिए, जो आपने टॉपिक बड़ा अच्छा चुना है।
रोड एहेड के लिए जो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, इनके बड़े खास मायने हैं, और ये बात मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, इस पर मैं थोड़े समय के बाद आऊंगा। उसके बाद एसएससी जो रिप्लाई देगा, नहीं देता है, एसएससी की मर्जी, यदि देता है तो उस एसएससी के रिप्लाई को संज्ञान लेते हुए देन असेसिंग ऑफिसर्स 148A में क्लॉज स्मॉल डी है, उसका ऑर्डर पास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और एक्ट में भी लिखा हुआ है। और उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर को पास करने की एक समय सीमा है जो 148A में दी गई है। तो उस 148A के ऑर्डर को वो पास करेगा। ये बड़ा डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से, ये बड़े कागज को उठाने पटकने की। तो देखिए जरा आप, हाँ, तो 148A का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर पास करेगा, और उसके बाद 148A का ऑर्डर क्या होता है? 148A का ऑर्डर ये होता है where the assessing officer would hold that based on the material in his possession, based on the information in his possession, and based upon the reply furnished by an SSE, it is a fit case to issue notice under section 148. Now, if in the order under clause D, assessing officer finds that this is not a fit case for the issue of a notice under section 148, then obviously there is no reason or occasion for an assessing officer to issue notice under section 148. But where 148AD में assessing officer ये hold करता है कि हाँ, this is a fit case where notice under section 148 is to be issued. तो जो नोटिस है 148 का नए लॉ में, इस 148A स्मॉल डी के ऑर्डर के साथ एसएससी को सर्व किया जाएगा, और यहां से फिर उसका असेसमेंट रीअसेसमेंट शुरू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि भाई कौन कौन से साल अब रीअसेसमेंट और रीओपनिंग के दायरे में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बहुत विद्वान लोगों के इस बारे में कमेंट्स भी आए, और एक व्यू ये आया कि असेसमेंट ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15 और असेसमेंट ईयर 15-16 जिनको की इशू करने की जो लास्ट डेट थी तो 31 मार्च 2021 थी, तो लिहाजा 140 बड़ा डिस्टरबेंस है, पता नहीं इसलिए है। किसी के माइक से पेपर्स को हटाने की, पेपर्स को उठाने की बहुत आवाज आ रही है। तो ये इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो थोड़ा माइंड भटक जाता है। तो आई वहां, तो एक व्यू ये था कि असेसमेंट ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15, इनकी जो लास्ट टाइम लिमिट थी वो टाइम लिमिट थी 31 मार्च 2021, और वो 31 मार्च 2021 को जो टाइम उसका खत्म हो गया, तो लिहाजा असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के असेसमेंट्स नहीं खुल सकते हैं। और असेसमेंट ईयर 15-16 की जो आखिरी टाइम लिमिट थी पुराने 149(1)B के हिसाब से 6 इयर्स, वो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया। तो इवन 15-16 का केस भी नहीं खुल सकता। इस तरह की मेजोरिटी ओपिनियन थी और मेजोरिटी ओपिनियन है, और ऐसी ओपिनियन तो हमारे कानों को रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन क्या ये इस तरह की ओपिनियन, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम एज एन एडवोकेट आर्ग्यू करेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन क्या इस तरह की ओपिनियन ही एक सही ओपिनियन है या कोई और भी ओपिनियन हो सकती है, इस पर यदि हम चर्चा नहीं करते हैं तो आई थिंक दैट वी विल बी फेलिंग इन अवर ड्यूटी टू एनालाइज इट this in objective manner, and more particularly when we are trying to find out the road ahead after Supreme Court's decision. तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद ये कंट्रोवर्सी जब बहुत ज्यादा बलवती हुई, तब सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शंस जारी किया, इंस्ट्रक्शंस नंबर 1/2022, और इसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 149 के जो डिफेंसेस एसएससी को अवेलेबल हैं,
या सेक्शन 149 फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा जो संशोधित है, 22 के द्वारा नहीं, 2021 के द्वारा, फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा जो संशोधित 149 के डिफेंसेस अवेलेबल एसएससी को हैं या जो राइट्स असेसिंग ऑफिसर को हैं वो यथावत रहेंगे. ऑल डिफेंसेस आर ओपन एंड ऑल provisions, all contentions are open. That is what Supreme Court said in the decision of Ashish Agrawal. तो बोर्ड ने कहा कि असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 और 15-16 जहां पर की एस्केप्ड इनकम 50 लाख से कम है, वहां पर बोर्ड ने इंडिकेशन दिया है कि उन केसेस को हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि सेक्शन 149 जैसा कि अमेंडमेंट किया फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, उसके सबसेक्शन क्लॉज स्मॉल बी में ये लिखा है कि 3 साल से परे कोई भी असेसमेंट जब भी खुल सकता है when the assessing officer in his possession has got books of accounts, documents or evidence which reveals that the income escaped amounts to or is likely to amount to rupees 50 lakhs or more. तो उन्होंने कहा 13-14, 14-15, 15-16 these are those assessment years जहां period of 3 years have elapsed, and therefore board has taken this decision in its instruction that where the amount escaped or amount likely to escape is less than rupees 50 lakhs, then उसको हम नहीं खोलेंगे. Meaning thereby यदि इन सालों के cases where escaped income is more than 50 lakhs of rupees, then as per the instructions of the board, now these cases can be reopened. But then we will examine it independently also, because board's instructions may be binding on departmental authorities. That law is very old and clear, that the board's circulars may be binding on the departmental authorities, but then the board's circulars are not binding on the courts, unless of course those circulars are benevolent circular. If those circulars give some benefit to an SSE, even if they are contrary to law, the courts have said long back in Navneet Lal Jhaveri's case, Constitution Bench decision, कि इस तरह के बोर्ड सर्कुलर्स को एनफोर्स किया जा सकता है. लेकिन जो बोर्ड्स के सर्कुलर बेनेवलेंट नहीं है वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज पर बाइंडिंग हो सकते हैं, बट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. हालांकि कोर्ट्स कहती हैं कि बोर्ड्स के सर्कुलर इज ए कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, यानी कि एक बोर्ड विच इज द हाईएस्ट बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स लॉज, यदि वो लॉ को एक पर्टिकुलर तरीके से समझ रही है तो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोर्ड मे बी वन ऑफ द एड्स for the courts to interpret the law. ये position, लेकिन that understanding of law by the board is not binding on the courts. So सबसे पहले board ने अपने instruction जो circular है, and circulars as all of us know are issued under section 119 of the Income Tax Act, and therefore they have got the statutory backing. So board ने अपने इस instruction में, which has been issued as a circular, now has taken this stand कि assessment year 13-14, 14-15, 15-16 जहां पर 50 लाख से कम की इनकम एस्केपिंग है वहां पर हम नहीं केस खोलेंगे. मीनिंग देयर बाय जहां ज्यादा है तो बोर्ड के हिसाब से वो केसेस खुल सकते हैं. असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18 भी बोर्ड का ये कहना है कि 16-17, 17-18 ये they will be taken to have been issued within 3 years as per 149(1)(b) by taking the original date of the issue of notice as the date of notice. So उन्होंने कहा है कि उसके लिए 16-17, 17-18 को हम खोल सकते हैं. तो अब ये देखने वाली बात ये है कि क्या इन सालों के असेसमेंट्स खोले जा सकते हैं. हाँ, बोर्ड ने एक चीज और कहा कि हमको ये देखना होगा लिमिटेशन के पॉइंट से कि ओरिजिनली नोटिस कब इशू हुआ. सो ओरिजिनली नोटिस जो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच 2021 में जो नोटिस हुए थे उनको उन्हीं को ही डेट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेट बैक. और फिर बोर्ड ने सेक्शन 149 को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की अपनी इंस्ट्रक्शंस में,
और सेक्शन 149 को उन्होंने केवल फर्स्ट प्रोवाइजो तक ही रिप्रोड्यूस किया। और इससे ऐसा लगता है कि बोर्ड की निगाह में भी जो 149 सबसेक्शन 1 के जो बाकी प्रोवाइजोज हैं या बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पता नहीं बेमानी थे, मायने नहीं रखते थे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब हम चर्चा करेंगे कि अब क्या क्या हो सकता था सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के कंटेक्स्ट में, सीबीडीटी सर्कुलर के कंटेक्स्ट में। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक जो पॉपुलर बिलीफ या पॉपुलर ओपिनियन है which is being liked by all of us is कि भाई 13, 14, 14, 15, 15, 16 नहीं खोल सकते हैं। लेकिन एक इक्वली इंपॉर्टेंट जो व्यू है और जिसको कि मैं भी सपोर्ट करता हूं वो ये है कि इन सालों के केस खुल सकते थे या नहीं खुल सकते थे, उसके लिए कुछ सेक्शंस का एनालिसिस जरूरी है। और वो एनालिसिस है, सबसे पहले जो नया 149(1) आया उसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो जो बोर्ड ने भी रिप्रोड्यूस किया है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले का कोई भी असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21 से पहले, यानी कि 13 असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके असेसमेंट ईयर 20-21, ये मान लेते हैं असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके असेसमेंट ईयर 20-21, 149(1) का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है उसका मैं अपने शब्दों में जो अर्थ समझ रहा हूं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि असेसमेंट ईयर 13-14 से असेसमेंट ईयर 20-21 तक के असेसमेंट के लिए जो खोलने का जो लास्ट टाइम होगा, जो लास्ट जो लिमिटेशन होगी वो 10 साल नहीं होगी। वो कौन सी होगी? जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले जो ओल्ड प्रोविजन जो 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज स्मॉल बी था, यानी कि 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, वही टाइम लिमिट होगी। यानी कि असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए 31 मार्च 2020, जो कि टोला से बढ़ के 31 मार्च 2021 हो गई थी। 14-15 के लिए 6 years 2021 31 मार्च, 15-16 के लिए 31 मार्च 22, 16-17 के लिए 31 मार्च 2023, 17-18 के लिए 2024, 18-19 के लिए 2025 और असेसमेंट 19-20 के लिए 2026 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए 2027 31 मार्च होगी। तो सबसे पहले जो 149(1) का जो फर्स्ट प्रोवाइजो था उसने ये स्पष्ट किया, हालांकि लॉ तो हमेशा से ये था कि लिमिटेशन जिस भी दिन पुराने लॉ में थी वो वही लिमिटेशन मानी जाएगी। यदि कोई चीज एक पर्टिकुलर डे के दिन अंडर द देन प्रिवेलिंग लॉ यदि वो आउट ऑफ लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन रिवाइव नहीं की जा सकती, ये लॉ हुआ करता था। तो उस लॉ को और स्पष्टीकरण करते हुए 149 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा ये क्लियर कर दिया सरकार ने, कानून ने, विधायिका ने, कि असेसमेंट ईयर 20-21 तक के असेसमेंट के लिए जो पुरानी 6 साल की लिमिट थी वही लगेगी। सबसे पहले हम इसको हम समझ लें। लेकिन जो उसकी वर्डिंग्स है असेसमेंट ईयर फर्स्ट प्रोवाइजो टू 149(1) की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। वो कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन 1 अप्रैल 2021 से पहले एज पर द ओल्ड 149(1) थी वही लगेगी। अब यदि हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो 6 years, लेकिन 149(1) में क्या टाइम लिमिट था? 6 years टाइम लिमिट था। लेकिन हमको टैक्सेशन, अदर लॉज, रिलैक्सेशंस एंड अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2020 का भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहता था? टैक्सेशन टोला, उसको हम शॉर्ट में टोला बोलेंगे। टोला का जो सेक्शन 3 था उसका सबसेक्शन 1 था। वो ये कहता था, उसका लुब्बो लुबाव सम एंड सब्सटेंस में बतला रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पढ़ने के लिए एग्जैक्टली चीजें नहीं है। वो जो चीजें थी वो मेरे मोबाइल में, मोबाइल से मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए दे आर नॉट अवेलेबल विद मी हियर इन योर। सो टोला क्या कहता था? टोला का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ये कहता था कि कोई भी डेट
जो 23 मार्च 2020 जब से पैंडेमिक शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 के बीच में है, मैंने जो बीच के नोटिफिकेशंस थे उसकी डेट को भी मैंने इसमें ले लिया है अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए। 23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में कोई भी डेट यदि फॉल कर रही है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस, तो वो 31 मार्च 2021 हो जाएगी या वह हो जाएगी जो नोटिफिकेशंस इस टोला के अंतर्गत में इशू होंगे। तो टोला के अंतर्गत दो नोटिफिकेशन इशू हुए, 31 मार्च 2021 का जिसने 30 अप्रैल किया, और एक 27 अप्रैल 2021 का जिसने 30 जून 2021 किया। तो 149(1)(b में जो 6 साल, ओल्ड लॉ में जो 6 साल की लिमिटेशन थी, दैट लिमिटेशन ऑफ 6 years कैन नॉट बी रेड ओनली 6 years। वो लिमिटेशन को हमको पढ़ना पड़ेगा 149(1) की जो लिमिटेशन और जो टैक्सेशन एंड अदर प्रोविजंस अमेंडमेंट रिलैक्सेशन एक्ट 2020 में उसको उठाकर 30 जून 2021 जो कर दिया गया नोटिफिकेशंस के द्वारा। नोटिफिकेशंस वैलिड है। नोटिफिकेशंस कब इशू कर सकती थी सरकार टोला में, और किस बात के लिए कर सकती थी कि डेट को एक्सटेंड करने के लिए, उसके परे कुछ नहीं। तो डेट को एक्सटेंड करने के लिए टोला में जो 30 जून 2021 जो डेट कर दी गई थी, 149(1)(b अंडर द ओल्ड लॉ will have to be read, in my respectful opinion, will have to be read along with TOLA and its notifications. और काइंडली माइंड इट, किसी भी हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशंस को एज सच क्वेश नहीं किया है। नोटिफिकेशंस के केवल उस पोर्शन को क्वेश किया है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो टोला ने जो अथॉरिटी दी थी उससे परे चली गई। कहां, कैसे परे चली गई कि जहां नोटिफिकेशन में बोर्ड ने यह भी बोल दिया कि कौन सा लॉ लगेगा, तो कोर्ट्स ने कहा कौन सा लॉ लगेगा इसके लिए टोला में पावर नहीं दी थी सरकार को स्पेसिफाई करने के लिए। सरकार ने टोला में नोटिफिकेशन इशू करने की केवल इतनी पावर दी थी कि वो डेट को एक्सटेंड कर दें। डेट एक्सटेंड के बाद क्या लॉ लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में लॉ डिसाइड करेगा, उसके बारे में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से नहीं डिसाइड करेगी। तो टोला के अंतर्गत जो नोटिफिकेशंस इशू हुए, वो नोटिफिकेशंस itself were not held as bad by High Court. What was held bad by the High Court was only that portion of notification which was in excess of the power conferred by टोला। तो जो 149(1) का जो प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो है अमेंडेड एक्ट 2021 का, उसमें जो लिखा हुआ है कि ओल्ड 149(1) में 6 साल की जो लिमिट है, इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन, वो 6 साल की लिमिट नाउ विल फर्दर बी इंक्रीज्ड एज इंक्रीज्ड बाय द नोटिफिकेशंस अंडर टोला 30 जून 2021। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि बोर्ड ने अपने इस इंस्ट्रक्शन में ये रीजनिंग नहीं दी है। उन्होंने बस एक मोटे तौर पर एक नॉन स्पीकिंग मैनर में ये बोल दिया है कि थ्योरी ऑफ रिलेट बैक के हिसाब से ओरिजिनली जब नोटिस इशू हुआ था तो ये नोटिसेस भी उसी दिन से माने जाएंगे। लेकिन इसकी जो रीजनिंग जो मैं समझाऊं, I may be wrong also, but then at least I am entitled to have my opinion, and I am bearing my chest to put my opinion, before this August gathering. So, under the first proviso to section 149 subsection 1, as amended by Finance Act 2021, any assessment from 13/14 to 2021 now can be reopened within the time limit as given under old 149(1)(b and read with टोला। So टोला को पढ़ने के बाद वो 30 जून तक जो भी नोटिस इशू हो सकते थे वो हो सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस दौरान 1 अप्रैल से 30 जून 2021 के बीच में जो भी नोटिसेस 148 अंडर द ओल्ड लॉ इशू हुए थे उनको नए लॉ के 148A के नोटिसेस मान लिए जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब
148A के नोटिस मान लिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कह रहा है कि एसएससी को 15 दिन का टाइम दिया जाए, सप्लाई करने के बाद इंफॉर्मेशन 15 दिन 2 वीक्स का टाइम दिया जाए रिप्लाई देने के लिए, तो वो जो 148 का नोटिस 148A का जो माना गया था और जिस दिन 15 दिन खत्म होंगे, वो सारा की सारा पीरियड थर्ड प्रोवाइजो टू न्यू 149(1) के हिसाब से, इन माय रिस्पेक्टफुल ओपिनियन, वो सब एक्सक्लूड होगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सीबीडीटी ने अपनी इंस्ट्रक्शन में 149 जो नया वाला था उसको केवल फर्स्ट प्रोवाइजो तक ही रिप्रोड्यूस किया है। थर्ड और फोर्थ प्रोवाइजो मेरे हिसाब से जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और इवन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है जो एसेट को डिफाइन करता है, उसको भी बोर्ड ने अपने इंस्ट्रक्शन में गोल कर दिया है। क्यों किया है? I have not been able to fathom, I have not been able to appreciate. But then such selective reproduction of section 149 was a self-inflicted injury, I would say, even to this extent by the board. But anyway, we have to see the position of law. Even if the board may have interpreted or misinterpreted or has not reproduced a particular portion of a section, but then courts have said that there can be no estoppel against law. We have to read the law as it is, and therefore when we read the law, then in my view, in my respectful view, 148A की नोटिस जो मान ली गई, वहां से लेके और जो 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, वो टाइम लिमिट इस 148 के नोटिस को इशू करने की जो लिमिटेशन है अंडर द अमेंडेड लॉ सेक्शन 149, उसके लिए वो एक्सक्लूड होगी। और एक्सक्लूजन की जो पावर है वो थर्ड प्रोवाइजो टू न्यू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में है। आप यदि पढ़ेंगे उसको तो उसमें लिखा है कि 148A में जो टाइम दिया है 7 दिन का, जो टाइम एक्सटेंड हो सकता है 30 दिन तक एसएससी की रिक्वेस्ट पर, तो वो 7 दिन या और उससे ज्यादा अधिकतम 30 दिन तक का टाइम जो 148A बी में जो दिया गया है एसएससी को रिप्लाई देने के लिए, उतना टाइम को इग्नोर कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट कि वेदर नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज बीइंग इशूड विद इन 3 years और इज बीइंग इशूड विद इन 10 years। तो जो थर्ड प्रोवाइजो है, ये जो टाइम लिमिट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन उसका we will have to interpret, and in my respectful view, no court would afford to interpret it in any other manner, particularly when the Supreme Court ने अपने ऑर्डर में कहा है कि we cannot see 90,000 notices being rendered remediless। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने सारे केसेस में नोटिस इशू करने के बाद भी असेसमेंट नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? So having regard to the total contours of Supreme Court's decision, having regard to the tone tenor of the Supreme Court decision, 148A में जो टाइम लिमिट है, तो जिस दिन से वो 148 का नोटिस 148A का नोटिस माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, इस टाइम को एक्सक्लूड करना होगा और करके ये देखना होगा। और क्यों करना होगा? बिकॉज थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 148A, थर्ड प्रोवाइजो, सॉरी 149 नया प्रोविजन, 149(1) का जो नया प्रोविजन है फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा जो मॉडिफाइड है, उसका जो थर्ड प्रोवाइजो है, जो कहता है कि जो टाइम लिमिट 148AB के टाइम 148A के नोटिस में दिया, उसको एक्सक्लूड करके देखा जाएगा कि 148 टाइम से इश्यू हुआ है नहीं हुआ है, इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशंस वो देखा जाएगा। और फोर्थ प्रोवाइजो ऑफ न्यू 149(1) अगेन हैज बीन इग्नोर्ड बाय द बोर्ड। उसमें लिखा है कि इस पीरियड को निकालने के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास यदि 7 दिन से कम का समय रहता है तो उसको 7 दिन का समय मिल जाएगा। तो बोर्ड ने बड़े इंटरेस्टिंगली, स्ट्रेंजली, क्यूरियसली ये थर्ड और फोर्थ प्रोवाइजो का क्यों नहीं संज्ञान लिया
ये मेरी समझ से परे है, और लेकिन कोर्ट्स इस बात का संज्ञान लेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि बोर्ड ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में इनका संज्ञान नहीं लिया, लिहाजा इस इंटरप्रिटेशन को, बिकॉज देयर कैन बी नो एस्ट्रोपल अगेंस्ट लॉ, वील हैव टू रीड द लॉ. I may commit error in reading the law, and similarly, the board can also commit error in reading the law. So we'll have to see the law as it is. So, according to me, the road ahead after Supreme Court decision and board instruction is that assessment year 13-14. मुझे मालूम है कि मेरा इस तरह का ओपिनियन और सुझाव हम में से बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि when it will come to the fighting, we will take all those kinds of arguments which would say कि साहब ये assessment नहीं खोल सकते थे, लेकिन since we are discussing on a forum to discuss the law, therefore we would be failing in our duty unless we discuss the provisions on objective considerations. So according to that, assessment year 13-14, 14-15, 15-16, जिनके की नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में इशू हो गए थे, इन माई रिस्पेक्टफुल सबमिशंस, टोला का इफेक्ट लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में 15 दिन का इफेक्ट लेने के बाद, सुप्रीम और थर्ड प्रोवाइजो और फोर्थ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 149(1) का इफेक्ट लेने के बाद, जहां 50 लाख से ऊपर की एस्केपमेंट है, एंड दैट एस्केपमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट. नाउ अगेन बोर्ड ने अपने इस इंस्ट्रक्शन में रिप्रेजेंटेड बाय एसेट को टोटली इग्नोर कर दिया है. So much so, even explanation which defines asset for the purpose of 149(1)(b), even that has also been glossed over by the board very unfairly. Or even if in their instructions they have not referred even the other facet of 149(1)(b), that if the escaped income or likely escaped income which is in excess of 50 lakhs of rupees is represented by asset, इसको पूरा बोर्ड खा गया है. मैं यदि शब्दों में बोलूं तो बोर्ड ने उसको ग्लॉस ओवर कर दिया है, which again in my respectful submissions is not fair, at least from the board's standpoint of view, which is the highest administrative body for administering the tax laws. So 13-14, 14-15, 15-16, having regard to the first proviso to new 149(1), having regard to TOLA, having regard to Supreme Court's decision treating 148 notice as 148A notice, having regard to Supreme Court's direction to give 15 days time to the SSE to respond, and having regard to the third proviso and fourth proviso of new 149(1), my respectful view and submission is that assessment 13-14, 14-15, 15-16, where the escaped income is more than 50 lakhs of rupees, which is represented by assets, now can be reopened. So, road ahead is that as per the order of Supreme Court, assessing officer would be supplying you the information or the material. You must file your response within 2 weeks. Or if you need more time, then you will have to make prayer for more time on some cogent and plausible basis. Then file your reply within that extended time if allowed by the assessing officer. Let assessing officer pass an order under 148A clause small d, holding that this is a fit case where the notice under section 140 is to be issued, and then you see and whether the escaped income was more than 50 lakhs of rupees, and then whether it was represented by assets, and then in that situation, then it will have to be taken in that sense. Assessment year 16, 17 and 17, 18. Again, they will be treated to be issued as per me within 3 years, and all those provisions as the board has taken this stand. Now, in my view, that stand is correct, and
this is in my view the road ahead. So now I'll take the questions because I'm seeing some questions are coming in chat box. So Mohit ji, जैन साहब, लेकिन जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मार्च 2022 या अर्ली अप्रैल 2022 में जितने भी 148A-D के जो ऑर्डर्स पास किए डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज ने, दैट डिड नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, और जितने मैकेनिकल वे में वो ऑर्डर्स पास हुए और उससे भी ज्यादा मैकेनिकल वे में हायर अथॉरिटीज ने अपनी अप्रूवल्स दी, आई मीन इट इज ए सॉर्डेड स्टेट ऑफ अफेयर, इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर. एंड पर्पस 148A को लाने का ये नहीं था जो कि हमें ग्राउंड रियलिटी पर देखने को मिला है. ऑब्जेक्टिव 148A लाने का बड़ा लाउडेबल था, बड़ा नोबल था, बड़ा सैल्यूटरी था, और वो ये था कि एसएससी को 148 नोटिस देने से पहले उसको बता दिया जाए कि भाई उसके अगेंस्ट क्या मटेरियल है, और लेट एसएससी गिव इट्स रिप्लाई, और उसके बाद उन दोनों का संज्ञान लेते हुए एक प्राइमा फेसाई जुडिशियस ऑर्डर पास किया जाए कि भाई हाँ, इसमें 148 का नोटिस इश्यू करना बनता है, नहीं बनता. लेकिन मेरा अपना अनुभव जो मैंने देखे हैं और जो मेरे मित्रों ने मुझे बताया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि 148A-B, 148A-D की जितनी भी रिचुअल हुई हैं, it was observed by the departmental authorities more as a formality, more as a ritual simpliciter, and nothing more, nothing less. That is very unfortunate. और जैसा कि जैन साहब ने अपनी एप्रीहेंशन व्यक्त की अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का टाइम दिया है और उसके बाद 148A-D ऑर्डर पास करने की जो विधान में जो प्रावधान है, विधान में जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को भी कहीं इसी तरह से ना डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज फॉलो करें, उसकी एक संभावना है, उसका एक डर है, उसकी एक एप्रीहेंशन है. और वो जो डर और एप्रीहेंशन है, मैं भी ये कहूंगा कि वो कोई अनफाउंडेड नहीं है. हमारे पास हिस्ट्री है कि किस तरह से पहले मार्च में और अप्रैल में ऑर्डर्स पास हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि अब यदि सिस्टम इस तरह के ऑर्डर्स को पास करने की अनुमति देता है, तो उसके बाद तो फिर जो रिट रेमेडी है या एपलेट रेमेडी है, केवल वही है, और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी हम उसका संज्ञान बोर्ड को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ला सकते हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये पूरा करता हूं, और मोहित जी से, जैन साहब से और बाकी अधिकारी गणों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रश्न इस संदर्भ में आए हैं वो मुझे संप्रेषित करें, जिससे कि मैं उनका जवाब दे सकूं. Thank you, sir. Thank you for the deliberation and sharing your views. We have some queries in the chat box and some members have raised their hands. I think it's now time to take up the queries by. I request Gulshan Wadhwa ji and Anshul ji to help Rakesh sir for the queries. के सिंगला जी, आप अपनी बोली पूछ लो. नमस्कार गुप्ता जी. हेलो, आई एम ऑडिबल सर? Sir, your voice is not clear. हेलो, मोहित जी, राकेश गुप्ता जी को अनम्यूट कर दें. जी सर, जी. ठीक है, अब ठीक है. जी सर. हेलो, हाँ नमस्कार गुप्ता जी. नमस्कार सर. नमस्कार सर, सेक्शन 148 में जो इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है, आपकी आवाज ना बड़ी भर्रा के आ रही है, ज्यादा पास से बोल रहे हैं तो आप. सर हाँ सर, बोलें सर, प्लीज बोलें. सर, ऐसा है कि सेक्शन 148 में इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन में. There are only two kind of informations which can be. सर, आपकी आवाज ना बड़ी ही वैसे आ रही है सर. सिंगला जी थोड़ा सा पीछे होके बोले. हाँ जी सर, सेक्शन 1. अब आवाज ठीक है सर?
नहीं सर, बहुत तेज आ रही है और बड़ी भर्राई हुई आवाज आ रही है, तो क्लैरिटी नहीं है सर उसमें। सर बाद में देख। हाँ सर बोले। बोले सर। अनीता जी, सर आप बाकी क्वेरी लीजिए, मैं दूसरा किसे करता हूँ। बोलिए सर। सर सिंगला जी कह रहे हैं कि मैं बाद में करता हूँ, उनकी वॉइस। हाँ हाँ तो वो, हाँ तो हाँ जी। और बोले सर, और बोले सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हेलो। यार वधवा जी को भी सर आपको भी अनम्यूट करना। हेलो। हाँ बोलिए सर, मुझे सुनाई पड़ रहा है सर, मतलब बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार के सर। नमस्कार सर। सर मेरी क्वारी ये थी सर, जो नोटिसेस 1 अप्रैल के बाद इशू हुए हैं वो पुराने लॉ में इशू हुए। 1 अप्रैल ईयर भी बताइए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। 1 अप्रैल 2021 के बाद जो नोटिस इशू हुए हैं सर, हाँ हाँ वो पुराने 148 को ध्यान में रखते हुए इशू हुए हैं। ठीक है और सर। जबकि नए लॉ में जो 148 के नोटिस इशू होने थे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कि इनका जो एक वर्ड यूज करते थे कि फ्लैग होएगी इंफॉर्मेशन या ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, उसको ध्यान में रखते हुए नोटिस इशू होंगे, जो अपेरेंटली नोटिस इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो पुराने एक्ट में इशू हुए हैं सर। ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट। तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमें पास होगी सर, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन है या वो फ्लैग हुई इंफॉर्मेशन है, वो पास होगी या उसके बिना ही वो नोटिस इशू मान लिए जाएंगे कि 148 मैं समझ गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, हमको अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना है, ठीक है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब पुराने 148 को 148A मान लिया गया, तो इसका मतलब यह है कि 148A से पहले की जो भी कंडीशंस हैं वो एक तरह से कंप्लाई विद मान ली गई, नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इंफॉर्मेशन क्या आपको सप्लाई करेंगे। इंफॉर्मेशन जो रीजन में जो इंफॉर्मेशन है उनके पास, उस रीजन में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दैट विल मेक ए वेरी नेचुरल corollary or natural reading of the Supreme Court's decision. राइट। रजनीश कुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन है 50 लाख से नीचे वाला केस है, जो असेसमेंट 15-16 का है, वो तो टोला की वो टाइम बार्ड हो गया, 31 मार्च 21 को टाइम बार्ड हो गया। ये 22 को असेसमेंट 15-16 को 14-15 ले लीजिए सर। चलिए 14-15 ले लिया। हाँ, 31 मार्च 2021 21 को टाइम बार हुआ, बट देन टोला के हिसाब से 30 जून 2021 को टाइम बार हुआ। हाँ, पर बोर्ड ने उसको बोल दिया भी वो नहीं इशू करेंगे, वो 50 लाख से ऊपर वाले करेंगे, नीचे वाला वो उन्होंने टाइम बार्ड मान लिया उसको। तो 17-18 वाला की सेम पोजीशन क्यों नहीं है? वो टोला की वजह से क्यों बढ़ रहा है? वो भी तो 3 साल हो गए 17-18 वाले के भी। नहीं, 17-18 मेरे हिसाब से 17-18 पे टोला लगता ही नहीं था, ठीक है ना। फिर तो 31 मार्च 21 को वो भी खत्म हो गया। हाँ, तो मेरे हिसाब से 17-18 और 16-17 के लिए भी उनको जो नए वाले 149 1B का क्राइटेरिया है 50 लाख वाला, वही लगेगा। वही लगेगा ना सर? यस, मेरे हिसाब से वही लगेगा। तो इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं दिया उन्होंने। अब सर देखो, इंस्ट्रक्शंस तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ वहां से लिया, कुछ यहाँ से लिया, भानुमति का कुनबा उन्होंने जोड़ के उन्होंने दे दिया है। मतलब हम तो इसकी वो ले सकते हैं ना, इसका बिल्कुल और ना केवल लेंगे बल्कि आप जीतेंगे। ठीक, थैंक यू सर। Sir, the next query is regarding the material which the AO has to supply will include what, मतलब क्या information जो है वो AO से हम डिमांड कर सकते हैं।
देखो, एओ से हमें डिमांड करने का कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को ही डायरेक्शन दी है कि जो भी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप एसएससी को सप्लाई करिएगा, ठीक है ना। अब मालूम है क्या होगा, वो उनके पास सपोज इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई रिपोर्ट आई हुई है, तो रिपोर्ट की कॉपी नहीं देंगे आपको, वो आपको ये लिख के देंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन विंग से ये आई है कि आपने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फिक्टिशियस गेन लिया है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो अभी 31 मार्च से पहले जो भी नोटिस आए थे, और उनमें भी तो यही लॉ था कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है उन्होंने? तो इसलिए आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि ये सिर्फ खाना पूर्ति होगी, सिर्फ ये एक यदि कोई असेसिंग ऑफिसर इतना मैग्नेनिमस होके इन्फॉर्मेशन सप्लाई वाकई कर देता है जो उसके पास आई है, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। वरना वो यही कहेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास सेबी से इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये है, अब बताइए ये चीजें, बताइए आपको क्या कहना है। अब आप उनसे ये मांगेंगे कि भाई आप जो कह रहे हो उसमें कोई आपके पास कोई बयान है किसी के, वो दीजिए। तो पुराना अनुभव तो ये कहता है वो कुछ नहीं देंगे, वो तो 148A(d) का ऑर्डर उठा के पास कर देंगे। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप कहिएगा अपने रिप्लाई में जरूर कि साहब ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ये पर्याप्त नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, आप हमें ये चीज और दीजिएगा। लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू अवर दिस रिक्वेस्ट हमारा रिस्पांस ये है, हमारा जवाब ये है, हमारी जवाब के सपोर्ट में ये हमारी एविडेंसेस हैं। आपने जो कहना है आप तो कह दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है और रोड अहेड के लिए। गुलशन जी, पहले जौन से मेंबर्स ने हैंड रेज किया उनकी क्लियरेंस ले लीजिए सर प्लीज। अनीजा सर, हमको अनम्यूट कर दीजिए अनीजा जी को। सर किया हुआ जी, वो अपने सिस्टम से सर फिर पुष्कल जी ने भी हैंड रेज किया था, एक दिनेश सर ने किया हुआ, दिनेश। यस सर गुप्ता साहब, एक क्वेरीज थी कि जैसे 148 में दो सर्कमस्टेंसेस कहता है, रिस्क मैनेजमेंट या सीएजी, लेकिन 148 में पहले से रीजंस उन्होंने दे रखे हैं, उसमें लिख रखा है कि ये इंफॉर्मेशन उनको डीडीआई से आई हुई है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल से तो ये वैलिड नहीं होगी अब नए प्रोविजन के हिसाब से। देखो, उसके लिए जो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको 148A का नोटिस मान लिया है, तो उससे एंटीरियर जितनी भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मान ली हैं, कंडोन कर दी हैं, वेव कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, ये मानिएगा आप, ठीक है ना। आप ठीक है, आप ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए रेज करिएगा, लेकिन इन माय हम्बल व्यू ये ऑब्जेक्शन हमारा वैलिड नहीं होगा, कोई कोर्ट मानेगी नहीं। वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब 148A(b) का नोटिस ऑलरेडी मान लिया है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में तो खामी नहीं ढूंढ सकते ना, ठीक है ना अनिल साहब। ओके सर, ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरी वो क्वेरी जो आपने जो उसी के कंटिन्यूएशन में है, जो रिलाइड अपॉन मटेरियल वगैरह जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है सारा रिलाइड अपॉन मटेरियल देना है। तो अगर वो कुछ जैसे रीजंस टू बिलीव की, मोस्ट प्रोबेबली रीजंस टू बिलीव जो रिकॉर्ड किए होंगे वही कॉपी हमें मिलेगी, उसकी कॉपी दे देंगे, ठीक है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जैसे रिलाइड अपॉन मटेरियल लिखा है वो नहीं देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा कि हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे कुछ। यदि आपका एसएससी कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए जेल में रह के मगर से बैर करने के लिए तैयार है तो ठीक है, करिएगा, इसमें क्या बात है। तो फिर ऑल डिफेंसेस कंटेंशंस आर ओपन, ठीक है ना, वो करिएगा, कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Sir, good morning. At this side, Himanshu, and I just want to understand what will be the position if the case is after where the alternative ground is also taken before before the High Court. देखो, हाई कोर्ट्स की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। हाई कोर्ट नॉर्मली जहाँ ऑल्टरनेटिव रेमेडी होती है वहां पर वो कहता है आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास है, हम रिट में नहीं इंटरफियर करेंगे। लेकिन यदि कोई एक्शन गवर्नमेंट का जो पैल्पेबली ज्यूरिसडिक्शन से बेरेफ्ट हो या नेचुरल जस्टिस से बेरेफ्ट हो, तो वहां कोर्ट्स अपनी पावर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ऑर्डर पास हो गया, आपने अपील भी कर दी और साथ में रिट में भी चले गए, ठीक है ना, तो वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2-3 डिसीजंस में कहा है कि हमें मालूम है एसएससी ने अपील प्रीफर की है, लेकिन एसएससी ने अपील अपनी सिक्योरिटी के लिए कर दी है, लेकिन जो एक्शन है गवर्नमेंटल अथॉरिटी का वो इतना गलत है कि वी कांट रेसिस्ट आवर सेल्फ फ्रॉम नॉट एडहियरिंग और नॉट इंटरफियरिंग इनटू। बीच में कॉल आने लगी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. हाँ, चलिए अपने ये कॉल चली जाएगी। But तो sir, my question is that we have already in the writ before the Delhi High Court, and we okay, have two grounds. Ground one that is 148, and the second ground is that my assessment proceeding for 17-18 is going on because of TOLA. But apart from that, 148 notice has been issued on me on 30th 2021 also. नहीं, मैं समझा नहीं। आपका जो पहला आपने जो रिट फाइल की हुई है हाई कोर्ट में, किस चीज के अगेंस्ट फाइल की हुई है? Sir, we have filed writ on two grounds. नहीं, रिट पहले किसके अगेंस्ट फाइल की ये तो बताओगे, ग्राउंड तो बात की बात है। 148A के लिए मतलब आपको कोई 148A का नोटिस आया है, उसके अगेंस्ट में आप रिट में गए हैं और रिट आपकी पेंडिंग है, ठीक है ना? सर, रिट इज डिसाइडेड इन मनमोहन कोहली केस। अच्छा, रिट तो 148 था, केवल 148A नहीं था, रिट आपकी डिसाइड होगी मनमोहन कोहली में। यस सर। अब वो डिसीजन आशीष अग्रवाल में वो मॉडिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब उस मॉडिफाइड के बेसिस पर वो जो नोटिस आपका ऑलरेडी है 148 का 148A मान लिया जाएगा और उसके बाद उस मटेरियल सप्लाई होगा, फिर आपको जवाब देना होगा, तो 148AD का ऑर्डर इश्यू करेंगे, फिर उसके साथ आपको 148 देंगे। But in what we have also taken second ground in writ, that is my assessment proceeding is going on, and one notice issued on me on 30th June 2021. And नहीं, वो सब बेकार हो जाएंगे, वो इन्फेक्शियस हो जाएंगे। वो 23 मई को आ रहे हैं हियरिंग दिल्ली हाई कोर्ट में, वो सब अब they are all liable to be dismissed. Okay. बिकॉज उसका इफेक्ट क्या होगा? सपोज हाई कोर्ट ये कहता है कि 1 अप्रैल के बाद 30 जून को जो नोटिस इशू हुआ है वो गलत है, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ठीक है, तो इसलिए नथिंग वुड टर्न ऑन दैट। Can we take a ground that during the assessment proceeding, AO has not passed any order? And, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में बोल दिया पैन इंडिया बेसिस पे लगेगा, तो यहाँ यदि असेसमेंट भी हो गए हैं वो दोबारा होंगे सर, ठीक है ना, इस प्रोसेस के द्वारा दोबारा होंगे। ओके। जोरावर सिंह नेक्स्ट। हाँ जी, हेलो, कौन? बसीर साहब हैं क्या? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? ठीक है सर, ठीक। बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप, हैं? हाँ सर। चलो, मुझे आंसर मिल ही गया, अभी पीछे बात हो गई आपकी। मैं असल में मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, मेरा पॉइंट यही था कि जो ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं हाँ जी पीरियड में, उनका स्टेटस फिर मतलब आपके वो दोबारा होगा सर, सब अब दोबारा होगा। हाँ जी। चलो, मेरे को यही था कि उनका क्या स्टेटस है। जी हाँ जी। तो जो इसका मतलब जो अपील वगैरह भी फाइल की हुई है हमने, वो सब विड्रॉ कर वो सब they will be set at naught। वो सारी खत्म हो जाएंगे फिर इसके। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। ओके सर, यस सर। नेक्स्ट प्लीज। कंबोज सर। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार कंबोज सर। सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये जो पुराने सालों वाले हैं जिसमें 50 लाख से ऊपर की भी स्टेटमेंट है, जैसे हमारे एक मेंबर मिस्टर रुपिन मर्चेंट जी ने भी सवाल किया है कि 12-13 असेसमेंट ईयर के भी नोटिसेस जो हैं वो पुराने सालों के आ रहे हैं। तो वो सर्च केसेस में आ रहे हैं, लेट अस बी वेरी क्लियर। यस। सर्च केस में जैसे इन्होंने 10 साल का पीरियड बढ़ा दिया है, तो वो न्यू 148A में जैसे किसी की कोई 13-14 की पकड़ी जाती है, 14-15 की पकड़ी जाती है, तो वो क्या आज की डेट में भी वो नोटिसेस निकाल सकते हैं, वो इंक्वायरी कर सकते हैं? हाँ, आपको ध्यान हो इस फाइनेंस एक्ट 2022 में ना एक अमेंडमेंट किया है इन्होंने 149(1) में जी, उसके प्रोवाइजो में। हाँ जी। तो उन्होंने इस सिचुएशन को ही कवर करने के लिए किया है कि अब जिस दिन सर्च होगी
यदि उस दिन सर्च होती और वो कौन कौन से केस 153A और 3C में खुल सकते थे, वो सारे केस खोल दिए जाएंगे, ठीक है ना, खोल सकते हैं। तो ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है इस फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा, ये चूंकि पावर इन्होंने एनविसेज नहीं की थी, इसलिए इसे गलती हो गई, तो उसको इन्होंने भूल सुधार किया है और इसमें अमेंडमेंट करके 153A और 153C को भी इनकॉर्पोरेट किया है। मेरे पास एक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकता हूँ। आपको ध्यान होगा इस फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने उस गलती का सुधार किया है। जी जी जी। तो उस हिसाब से ये जो पुराने सालों की भी इंक्वायरी है या जनरल इंक्वायरी भी कोई आती है, जैसे कोई STR आ गई, कोई किसी की कंप्लेंट कोई डाल देता है, एनोनिमस कंप्लेंट भी जी इसने फला ईयर में ये कमा लिया जी, करोड़ों रुपए कमा लिए, ये कोठी खड़ी कर ली, वो करोड़ों की जमीनें ले ली, तो क्या ये ऐसे केसेस में इंक्वायरी करके नए प्रोविजंस में 10 साल की, चाहे अगर वो सर्च केस नहीं है, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी? मैं समझ गया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंक्वायरी के लिए क्या कोई लिमिटेशन है, ईयर वाइज कोई लिमिटेशन है, और उस इंक्वायरी के बेसिस पे जो मटेरियल आया उसके बेसिस पर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स लेने की क्या पावर है, ये दो चीजें हमको समझनी है, ठीक है ना। हाँ, तो जहां तक इंक्वायरी करने के बारे में नंबर ऑफ ईयर्स का सवाल है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेट अस बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। उस इंक्वायरी के बेसिस पे जो मटेरियल आया उसके बेसिस पे अंडर लॉ, इन लॉ क्या प्रोसीडिंग्स टेकअप की जा सकती हैं, वो रेस्पेक्टिव सेक्शंस बतलाएंगी। तो यदि ये सर्च केस नहीं है और 153C वाला केस भी नहीं है, तो असेसमेंट ईयर 13-14 से पुरानी कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ भी जाएगी तो इनकम टैक्स एक्ट में कम से कम कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती हैं। अब उसके बेसिस पे अंडर ब्लैक मनी लॉ कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आ गई, से 2005-6 की इंफॉर्मेशन आ गई, 10-11 की आ गई, जो 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 10 साल से भी परे है, अब उसके बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन ब्लैक मनी एक्ट के असेसिंग ऑफिसर को सप्लाई कर दी जाए और उसके बेसिस पे ब्लैक मनी एक्ट की प्रोसीडिंग्स ले ली जाए या बेनामी एक्ट की प्रोसीडिंग्स, वो परमिसिबल है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते DDI को कि आप ये हमसे 10 साल से पुरानी या 6 साल से पुरानी या 7 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो, ठीक है। आप ये तो कह सकते हो कि चूंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रखने का और रिकॉर्ड रखने का कोई हमारे पास कंपल्शन नहीं थी, हमने रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, तो लिहाजा हम आपके द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन हम ये कहें कि आप 8 साल पुरानी या 10 साल पुरानी इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते हो लॉ में, to that I would say that probably that may not be a proper course. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। सुरेश जी। सुरेश जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। CA दामोदर अग्रवाल जी, सुरेश जी ने अनम्यूट कर लिया सर। हाँ सर, राकेश जी, मैं सुरेश काबरा बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार काबरा साहब, नमस्कार। नमस्कार। मुझे ठीक है, आपने जो ये इतना डिस्कशन हुआ सर, बहुत आपने प्रॉपर तरीके से समझाया, लेकिन इसमें अंत में 148 का नोटिस इशू करने के लिए AO के पास क्या टाइम रहेगा, उसके बारे में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो वो 199 के प्रोविजोस के हिसाब से 7 दिन होगा, 30 दिन होगा, या 148 7 दिन से चलेगा? 7 दिन होगा। सेक्शन में है कि वो 30 दिन और वो 1 महीना मिलेगा उनको, वो ओवर पावर हो जाएगा 4th प्रोवाइजो 149(1) से। उस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन किया। वो मेरे हिसाब से 7 दिन ही रहेगा सर। 7 दिन ही मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। 7 दिन हमारे रिप्लाई देने, 7 दिन कहाँ से मिलेगा सर? 7 दिन उसको मिलेगा, उसको पहले देखा जाएगा कि इस पीरियड को एक्सक्लूड जो है, जब से नोटिस 148 का 148A का नोटिस माना गया है वहां से, और जहां 15 दिन खत्म होते हैं उस पीरियड को निकालने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर के पास 7 दिन से कम का टाइम है तो 7 दिन, 7 दिन से ज्यादा का टाइम है तो 7 दिन, ठीक है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।
सीए दामोदर अग्रवाल जी। दामोदर अग्रवाल जी। दामोदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। रूपन, अच्छा। दामोदर सर आवाज नहीं आ रही, वी कैन नॉट हियर यू। हेलो। हाँ जी बोलिए, कौन साहब? रुपीन मर्चेंट बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ रुपेंद्र सर बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोथ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ यस सर, मेरा क्वेश्चन वैसे तो अभी सर ने आगे ले लिया, बट माय क्वेश्चन जी। कि किसी और के यहाँ सर्च हुई थी जहाँ पे कोई हाँ, एसएससी का कोई ब्रोकर का स्टेटमेंट लिया गया था, उसका केस हाँ, रीओपन हाँ। हुआ है ऑन 148 हाँ। की नोटिस इश्यू हुई ऑन 25 जून 2021। हाँ हाँ तो इज दिस अ वैलिड नोटिस? बिकॉज द थिंग इज दैट कि वहां पे इन लोगों ने स्टेटमेंट के अंदर 2012 में, फिनेंशियल ईयर 11-12 में उन लोगों ने हाँ। उनको बोला था कि आपकी जेब में से जो डायरी मिली है वहां पे हम लोग 2-2 जीरो ऐड कर रहे हैं, और यहाँ हाँ। पे ये नोटिस निकालने के लिए हर एक जगह पे उन लोगों ने 3-3 जीरो ऐड करके 1.5 करोड़ या 2 हाँ। करोड़ का अमाउंट कर दिया। हम्म। तो इज दिस अ नहीं, वैलिड तो नोटिस? इसका नो मतलब आपका एसएससी एक थर्ड पर्सन है। यस। जिसके यहाँ सर्च हुई वो नहीं है, नहीं, जिसकी ब्रोकर है वो नहीं है, ठीक है ना? उसका ब्रोकर था। नहीं, आपका एसएससी ब्रोकर था। ब्रोकर था, हाँ। अच्छा, तो आपका एसएससी जो ब्रोकर था, क्या एसएससी आपके एसएससी का केस 153C में ले लिया गया है क्या? नहीं, अभी तो यदि 148 का नोटिस इन्वेस्टिगेशन विंग से आया हुआ है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन विंग से 148 का नोटिस थोड़ी आएगा। इन्वेस्टिगेशन विंग से तो कोई इंक्वायरी समन वगैरह ऐसा है। नहीं, बट आया 148 का नोटिस है, इन्वेस्टिगेशन विंग से 148 का है। हेलो 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 सर वी कैन हियर यू। नहीं, मुझे तो आवाज मुझे आवाज रुपिन जी की चली गई है। रुपिन जी। हेलो। हाँ हाँ रुपिन जी। हाँ, सेंट्रल सर्कल से, सॉरी इन्वेस्टिगेशन विंग में भूल गया। हाँ, सेंट्रल यस सर्कल यस जहाँ यस पे यस। रेड हाँ। केसेस का असेसमेंट होता है वहां। हाँ, तो देखिए, यदि 148 का नोटिस है तो उसके लिए तो नहीं जा सकते ये 12-13 के लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन ये असेसमेंट ईयर 13, असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर 12-13 है सर, फिनेंशियल ईयर 11-12। नहीं जा सकते। या तो 153C में लिया हो तो जा सकते हैं, हाँ, वरना नहीं जा सकते। तो अभी भी अगर वहां से कुछ अगर कम्युनिकेशन होता है तो वी कैन से दैट इट्स अ वॉइड नोटिस और करके इलीगल एंड वॉइड नोटिस। मेरा रुपिन जी उसमें क्या, आप रुपिन जी कहाँ, बॉम्बे बेस्ड है, अहमदाबाद बेस्ड है? सूरत। आप सूरत में हैं। तो रुपिन जी देखो, मेरा इन सब चीजों के बारे में ये होता है कि आप सपोज ये कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, देन वो फिर 153C करने की कोई पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसी चीजों को जो आप समझते हैं ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तो आप उसको अपने तरीके से वैसे जवाब दीजिए, ना कि ये बोलिएगा, वरना वो देन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वे टू कवर इट। ओके। हाँ, strategy. This is a strategic answer which I have given you. I think you will pick up the thread from this stage. Okay. Okay sir, thank you sir. सर वो कहते हैं ना जी कि डोंट चैलेंज द अथॉरिटी। अगर चैलेंज करेंगे सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है और विभिन्न विद्वान लोग उसको तरह तरह से कहते हैं, ठीक है? दामोदर अग्रवाल जी। नहीं आ रही आवाज दामोदर जी की सर। हेलो। हरीश तनेजा सर। सर और भी तो क्वेश्चंस आए थे आपके पास, उसमें वो पूछना शुरू करें सर। हेलो सर, मोहित जैन। गुड मॉर्निंग सर। मोहित जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, एसएससी को नोटिस इशू हुआ है 31 मार्च 21 के बाद फॉर असेसमेंट ईयर 2013-14 रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर डिपॉजिट्स ऑफ कैश। बट एसएससी इज एनआरआई, he is sitting in USA, notices are not delivered to him. Okay. The last notice which he has received as a draft order in the month of February 2022.
हाँ तो व्हाट वी हैव द सॉल्यूशन? नहीं 148A(D) का ऑर्डर पास हुआ है। नहीं, अभी तो उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेजा है जी, मतलब उन्होंने मार्च 2022 में उनका डेटेड नोटिस है, जिसमें उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर ही भेज दिया सीधा। वो नोटिस उसको ड्राफ्ट ऑर्डर वहां सर्व हुआ है जी, बाहर आउट ऑफ इंडिया। अच्छा नहीं वो तो कोई बात नहीं, हमें कांटेक्ट किया है जी। ठीक है मैं समझ गया। तो ये असेसमेंट ईयर 13-14 का जो नोटिस है ये 31 मार्च 2021 के बाद उसको इशू हुआ है। हाँ जी। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से किसी ने 2 इंस्ट्रूमेंट खोले हुए हैं अपने। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन जो आशीष अग्रवाल इसके हिसाब से जो 148 का नोटिस जो इशू हुआ है वो 148A का माना जाएगा, और इसलिए अब एसएससी को दोबारा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एसएससी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, 148A(D) का ऑर्डर पास किया जाएगा। तो जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो सब बेकार है, ठीक है ना। दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। अनेजा सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हमारी नॉलेज को एनरिचन कर रहे हो। अरे नहीं सर, दिस इज अ टू वे प्रोसेस। आई एम गेटिंग एनरिच सर, आई एम ऑब्लाइज्ड सर। पीपल आर फैन ऑफ यू, आपके मैसेज आते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक इशू था 148। आप कहाँ पर हैं? चंडीगढ़ में हैं? कहाँ हैं? लुधियाना में। आप लुधियाना में सर। अच्छा सर। हाँ सर। हाँ तो मेरा सर क्वेश्चन ये था, जो 148A(D) में ऑर्डर हुए हैं अभी, हाँ जी, 18-19 असेसमेंट ईयर के, इन्होंने फैग एंड के नोटिस इशू किए हैं और जी, प्रॉपर जी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई मैक्सिमम केसेस में। जी और हाँ जी, इवन जो रिप्लाई हमने फाइल किए जहाँ वो भी कंसीडर नहीं किए, वो कंसीडर ही नहीं किए। तो ठीक रादर है। ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, हमारी जो लोकल अथॉरिटी सीनियर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास समय ही नहीं था आपके रिप्लाई देखने का। ठीक है, ठीक है। जो भी आपने कहना अब असेसमेंट में कह देना 148 की जो फेसलेस प्रोसीडिंग। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह आफ्टर ऑल दिस इज ए अनड्यू बर्डन ऑन द एसएससी लिटिगेशन जो भी है। तो 148D के ऑर्डर में हम 264 में जा सकते हैं कमिश्नर के पास, जहाँ पे रिप्लाई हाँ वो जा सकते हैं, रिप्लाई जा है। सकते हैं। कल को ये इशू तो नहीं आएगा क्योंकि 148A(D) जो पास हुआ है दैट इज विद द परमिशन ऑफ C3 और yes, that will प्रिंसिपल come. No, that will come, but nonetheless that is an order. Nonetheless, that is an order passed by an authority below the rank of commissioner, and therefore 264 may be open. हालांकि some principal commissioner may even take this view, since that order itself has been passed with the prior approval of a much higher authority. Therefore, now how can I adjudicate on that? तो मेरा उसमें ये कहना है कि बजाय अभी कि ये कर सकता है नहीं कर सकता, I always find 264 is a very dangerous remedy. Okay. Because उसके अगेंस्ट में यदि वो करते हैं, then you have got only the writ. You have injured yourself, you have disabled yourself from filing appeal. Okay. Therefore, I always suggest not to file 264 petitions. That is what my personal take is. Okay. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 264 हम फाइल करते हैं, सपोजिंग ऑर्डर हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो स्टिल नेक्स्ट प्रोसीडिंग में तो हम रिप्लाई दे पाएंगे ना? सिर्फ यही दे तो पाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे इतना गल्लूगारा हो जाएगा कि वो फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी आपको रिलीफ दे पाए ना दे पाए, अननेसेसरी आपकी अपील मेंटेनेबल भी हो या ना हो, बिकॉज अभी क्या है ये सब नई प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी कोई चीज यदि आप ना करें तो बेहतर रहेगा। ओके, तो जहां पर कि आपके आगे का रास्ता भी बेटर ये है, या तो डायरेक्ट रिट करें 148A(D) के ऑर्डर के अगेंस्ट, या फिर जो फेसलेस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो प्रोसेस है। जी हाँ जी, नहीं ऑप्शन बेटर। जी हाँ, थैंक यू जी। यस, उमेश खंडेलवाल जी। अंशुल जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं उमेश खंडेलवाल कानपुर से। अच्छा, कानपुर से बोल रहे हैं, बोलिए सर उमेश जी। जी सर, एक कंपनी का नोटिस आया है, उसमें कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई थी आज से करीब 4 साल पहले।
एग्जैक्ट डेट अभी मेरे को नहीं याद है, करीब 4 इयर्स हो गए। और डिपार्टमेंट ने उसको 148 का नोटिस दिया था मार्च 21, 31 मार्च 21 को। नोटिस उनको सर्व भी नहीं हुआ था। अब वो डिपार्टमेंट चला गया एनसीएलटी कंपनी का नाम रीइंस्टेट कराने के लिए। अच्छा। और एनसीएलटी से अब वहां उन्होंने जो पिटीशन फाइल किए तो उन्होंने काउंटर फाइल करने के लिए एसएससी को भेजा है। तो उस केस में उसमें हमने जब अमाउंट उसमें देखा तो करीब 47 लाख का था, वो नॉन जेन्युइन ट्रेड का मार्केट का उन्होंने रेफरेंस देते हुए निकाला है। तो अमाउंट 50 लाख से नीचे का आ रहा है। असेसमेंट ईयर 13-14 का मैटर है और एनसीएलटी में केस लगा हुआ है। तो पहले नाम रीइंस्टेट होगा, फिर प्रोसीडिंग होगी। तो इस केस में क्या होना चाहिए सर? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे प्रोसीड करें, क्या करें। नहीं, आप यू कंटेस्ट इवन बिफोर एनसीएलटी आल्सो, but then even if you happen to lose before NCLT, yes, then also nothing much would turn against you because the escaped income would in any case be less than 50 lakhs rupees. Yes. So यदि इसको रिवाइव करा भी लेंगे, लेकिन ये तो आपका केस 50 लाख से कम से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 31 मार्च 2021 से पहले ही सर्व हो गया है नोटिस आपको। जी जी। तो इसलिए यहाँ तो अंडर द ओल्ड प्रोविजन में तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती थी 149 1B में। हाँ हाँ। तो इसलिए 50 लाख वाली बात को तो मन से निकाल दें आप, निकाल ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो अब तो आपको ये देखना है कि एनसीएलटी में लड़ने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप उसको चाहे रेस्टोर भी कराएं, सॉरी डिपार्टमेंट रेस्टोर भी करा ले, लेकिन आप तो फिर जो अपील फाइल करेंगे उसके अगेंस्ट में आप यही प्ली लीजिएगा कि साहब जिस वक्त ये नोटिस 148 इशू हुआ था उस वक्त ये कंपनी स्ट्रक ऑफ थी, नॉन एग्जिस्टिंग थी, तो लिहाजा दिस एंटायर प्रोसेस प्रोसीडिंग्स आर इनवैलिड। ओके, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। सर विनोद मित्तल जी का क्वेरी है एक, दैट ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A(d) was passed on 31st of March 2022 at 10 AM. Where notice under section 148 was issued on 31st of March 2022 at 6 PM. Is this notice issued not along with order under section 140A(d) invalid or void? Why invalid? Because 148 has also been issued before 31st March. 148AD order has also been passed that day. Then just he is asking about the difference in timings, that it is issued on 10 AM and it is issued on 6 PM, not along with order. No. But if a notice under section 148 has been issued at 10 AM, then of course it is bad. But then if 148 has been issued at 6 PM, after 148 AD order has been passed at 10 AM, that is all right. Correct. मोहित जी, कुलदीप सिंह जी को अनम्यूट करा दें। जी कुलदीप सिंह जी अनम्यूट कर लो आप। सर बसीन साहब ने भी हैंड रेज किया हुआ, एक बार उनको भी फिर। हाँ जी टाइम देंगे। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, कौन? कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। अच्छा, कुलदीप सिंह जी फरीदाबाद से बोल रहे हो? इतनी बोलिए कुलदीप जी, बोलिए। क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर, मेरे गांव से ही बोल रहे हैं सर ये। बिल्कुल आपके गांव से बोल रहे हैं। हाँ। अरे अच्छा सुनो जी, जैन साहब लेट अस एंड इट। मैं भूल गया, मेरी एक और मीटिंग कॉल मेरा था, उनका कॉल आ रहा है, तो लेट अस आई थिंक एंड इट। मैं भूल गया कि एक और कॉल मेरे पास आ रही है, तो या तो 1-2 क्वेश्चन और क्विकली हम ले लेते हैं। सर 10 more minutes। चलो कोई बात नहीं सर, वो फिर जी सर प्लीज इंतजार करेंगे। हाँ प्लीज। हाँ सर मेरे पास एक नोटिस आया है 148 में, और इन्होंने 23 तारीख को बोला है कि 23 तारीख को हमने आपको एक नोटिस इशू किया, लेकिन वो नोटिस 148 का हमारे पास आया नहीं है। 148 है 148A? 148 में बोल रहे हैं जी, 148 में आपको हमने नोटिस दिया है, और नोटिस 148A में। हाँ, लेकिन वो नोटिस हमारे पास है नहीं जी। अच्छा,
मैंने मेल भी चेक कर ली और साइट पे भी देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं तभी अभी कंफर्म करके आपको फोन नहीं किया। तो अब आपके पास क्या चीज आई है जिससे मालूम पड़ा कि उन्होंने 148A का नोटिस दिया था आपको? अब उन्होंने ऑर्डर भेजा है जी मेरे पास 148 का। 148AD का ऑर्डर भेज दिया है? हाँ जी, ऑर्डर भेज दिया। अच्छा, अब जरा इसमें ये देखो, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, इस डी वाले ऑर्डर में जो बातें लिखी हुई हैं, यदि हाँ। आपको नोटिस मिल भी जाता तो आप कुछ बढ़िया बात कह सकते थे क्या? अभी तो इसने सर ये बोला है कि टीडीएस के ऊपर बोला 194(1) में। अच्छा, तो देखो कुलदीप जी, या तो आप इसके अगेंस्ट में रिट में जाइएगा। हाँ ठीक है ना, रिट में बोलिए साहब कि हमको तो 148A का नोटिस इशू ही नहीं किया, ना सर्व किया, और ये ऑर्डर पास कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो हाई कोर्ट उनसे जवाब लेने के बाद हो सकता है इसको सेटिसाइड कर दे और कहे भाई आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, या दूसरा तरीका ये है कि अपने आप भाग्य पर आप भरोसा करो और अब यहाँ से आगे बढ़ो। ठीक है ना? देखो मतलब अब इसमें रहोगे, हाई कोर्ट जाओगे, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। देख ही लिया हमने, आशीष अग्रवाल में लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, ठीक है ना? तो इस पे फिर क्या करें? मैंने बता तो दिया आप क्या करें। बाकी जब मैं फरीदाबाद आ जाऊं जब पूछ लेना, जब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, नमस्कार। Sir, I think we must now conclude as you have to go. Sir, the rest queries will be taken some other day, or we will send to you, and you please. Or on the lighter side, if I say that they will be deemed to be disposed of. Thank you, sir. Thank you. Now I would request Amarjit Kamboj ji, our senior member, to share his views and give concluding remarks. Sir, please kindly be brief. Thank you जी for giving me this opportunity. मैं डॉक्टर साहब की सबसे आखिरी बात से ही शुरू करूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्ट में अमेंडमेंट ला के कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। तो जब बजट आया तो इसमें कोई खास प्रावधान इन्होंने इस बारे में नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां से ही कुछ ना कुछ ये अगेंस्ट असेसिस आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इतने ज्यादा बड़े जो केसेस हैं, अगर वो अगेंस्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की भी एक जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो वही उन्होंने किया कि इधर I shouldn't say with all having all respects for the Supreme Court's order कि ये मेंबर्स की आपस में जो लास्ट में उन्होंने लिखा कि कंसेंसस विद द जो सॉलिसिटर जनरल थे, ASG साहब थे, और जो हमारे सीनियर लर्नड काउंसल्स थे, तो आपस में तो many things will be behind the scene. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बतलाता हूँ। अब आपने ये वाली बात कही है, since I was also one of the parties in the Supreme Court. ASG started his arguments by saying कि my lord, we could have brought amendments also, and we have thought even bringing amendments at very high level, but we are thinking that if these notices which were issued under 148 be treated as 148, and small cases we are not interested in going into. Now, after listening the ASG, then the court made up its mind. It said that we'll invoke our power under Article 142 come what may, even without listening the opposite side. So when the things started falling from the Supreme Court, that the orders of the High Court either will have to be quashed or modified by invoking extraordinary power under Article 142, then whether you say, you don't say, you agree or you don't agree, I mean, nothing much was going to, turn the things. And that is why rather there was no consensus as such. When the court said that we want to do this, now you tell
any other suggestion which can be incorporated therein. So this defense of 149 was one suggestion which was given from the consensus side, and that is how the lordships are written a broad consensus. Otherwise, whether it was a consensus or that too a free consensus, now that can be debated. But then if the lordships are written as a broad consensus, therefore we'll have to take it. But since I myself was one of the parties to the litigation, therefore now I'm giving you the first-hand account. Thank you, sir. Now coming to the topic of the today, the road ahead. My humble view is that the road is not that easy. It is much more bumpy than otherwise it could have been. 148 की जो प्रोविजंस हैं वो शुरू से ही बहुत ज्यादा हाईली लिटिगेटिव रही हैं और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी आसान होंगी, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट इसमें आई है, सर आई विल जस्ट टेक ए मिनट. Conducting inquiry, providing opportunity before issue of notice under section 148. This is the head note of the provisions. And with all respect, none of these things have been done by the respected department in any of the case. In rather, मैं तो एक example दे रहा था, मेरे एक actual हुआ है कि मैं एक example दे रहा था members को भी और department भी, कि डिपार्टमेंट कहता है जी आपने ये क्राइम किया है तो आपको क्यों ना हम पनिश करें. तो मैंने कहा कि भाई वो क्राइम मैंने कौन सा किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, कुछ तो बता दो. कहते कि नहीं वो तो आपको जब हम कोर्ट में खींचेंगे तब आपको वहां बता दें. हमारी FIR जो नोटिस है इसको एक्सेप्ट कीजिए. दिस हैज हैपेंड इन ए केस. आई आस्क्ड फॉर द इंफॉर्मेशन and they said this all we will provide you during the course of assessment proceeding, and your application and everything stands disposed of, and the order passed and notice issued under section 148. So now with this, the government, the honorable court has done it with the not to put any loss to the state exchequer, and but as usual it is the assessee who is to suffer. जो जनता है उसी ने ही सफर करना है, जो खरबूजा है उसी ने ही कटना है, चाकू चाहे ऊपर से लगे चाहे नीचे से लगे. तो दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन. बट सर एक चीज पे आप थोड़ा सा अगर जानकारी दें कि जैसे ये 4 मई की जजमेंट है और 11 मई को डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और आज 17 तारीख हो चुकी है, वो भी दिन खत्म हो गया है. तो ये 30 दिन के अंदर क्या जस्टिफिकेशन करेंगे, जबकि पहले प्रोविजन में दे हैड सफिशिएंट टाइम और डिपार्टमेंट को बताने के बावजूद भी कि 148 की प्रोविजंस में आपके पास सफिशिएंट टाइम है. अगर एसएससी टाइम मांग रहा है आप टाइम दीजिए, जितना मर्जी टाइम मांगे वो दीजिए, वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा. लेकिन इन्होंने टाइम नहीं दिया. तो क्या विद रिस्पेक्ट टू दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो उसमें टाइमलाइन दी है, क्या डिपार्टमेंट उसको मीट आउट कर सकेगा? क्या उसमें वो इतनी जजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एसएससी को प्रोवाइड करके ये सारा जस्टिफिकेशन कर सकेंगे, जिसके लिए मेरी बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि ऐसा नहीं. आप ठीक है, ये फॉर्मेलिटी होगी, देखना बड़ा रिचुअलिस्टिक मैनर में ऑब्जर्व किया जाएगा. जी जी जी. सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. एंड थैंक यू सर. थैंक यू. मैं तो यही कह सकता हूँ कि सर आपकी जो लोकप्रियता है वो अकेले पंजाब या दिल्ली में नहीं है, इट इज पैन इंडिया. आप देखिए लुधियाना में वेबिनार कंडक्ट हो रहा है और मेंबर्स कहाँ से आपके साथ जुड़े. मैं अपने जो यंगर मेंबर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपका पहला सेमिनार लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में हुआ था. एंड आई टेस्ट योर नॉलेज एंड यू गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. इश्यू पे आपको सवाल किया और आपने मुझे कहा कि हाँ इसके ऊपर एक जजमेंट है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. और आपने मुझे वो सुप्रीम कोर्ट ATI से रिलेशन वाला इश्यू. सो याद आ गया मुझे सर. हैट्स ऑफ. और परमात्मा का मतलब कि धन्यवाद करेंगे कि आपको इतनी मेमोरी और इतनी है. तो दिस इज ऑल सर. और आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी मेंबर्स को जो है वो गाइड किया, आपने सारी नॉलेज शेयर किया और आप रेगुलरली करते आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं 1 सेकंड और लूंगा मेरी सभी मेंबर से कि वो काइंड वेबिनार के बाद इसको छोड़ के ना जाएं.
क्योंकि मैं वेबिनार की जो जनरल डिस्कशंस होती हैं उसको तो कहता हूँ ये एक पार्टी का खाना है, लेकिन जो मीठा है ना वो जब मेंबर्स की क्वेरीज आती हैं तो वो असली मीठा है जी। क्योंकि मुझे तो अपनी प्रॉब्लम्स पता है, अपने प्रॉब्लम पता है, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है जब आप दूसरे मेंबर्स की प्रॉब्लम्स और उनकी क्वेरीज को सुनते हो और उनके रिप्लाई सुनते हो, तभी आपकी नॉलेज जो है वेरी राइट। तो मेरी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो तब तक छोड़ के ना जाया करें। इन्हीं बातों से आपका वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, Sir, sir. lastly, I would like to request our study circle convener, CA Rajiv Kaushal ji, to give formal vote of thanks. Kaushal sir, please. Sir, my wife deserves a special thanks that she is enduring me. Otherwise, तो मैं जहाँ बोलता हूँ वो वहाँ नहीं होती है। तो आज तो she is enduring me by remaining in the same hotel room. मैं सर ये कहूंगा ऑनरेबल मैम भी आपकी बातें सुन के ना जी अपनी नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है, उनकी नॉलेज कहीं ज्यादा है हमसे। बट जी वो आपके पास बैठे हैं, उनकी जजमेंट है जी। शी इज वेरी वेरी अप टू डेट एंड हाईली एजुकेटेड ऑफिशियल। सर जरा होल्ड करो, मैं उनको सुनवा देता हूँ सर, मैं होल्ड करूँगा सर। आप बोलिए सर। नमस्कार मैम, अमरजीत तो लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। आपकी जजमेंट्स और आपकी कोर्ट हमने कई बार अटेंड की हैं, तो बहुत बढ़िया जजमेंट्स आपकी होती हैं। नमस्कार मैम। तो मैं कह रहा था मैम, वो कह रहे थे कि सर कह रहे थे कि आपको एंड्योर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो आपकी जजमेंट्स और नॉलेज सुन के और भी अपने आप को अपडेट करेंगे। एंड वी आर वेरी होपफुल गेटिंग मोर देन द जस्टिस एज वी आर गेटिंग फ्रॉम यू मैम। Thank you sir, thank you sir, thank you, नमस्कार सर, नमस्कार, thank you Kaushal sir, please. Sir, before I propose formal vote of thanks, I wish to tell you कि 160 members ने ऑल ओवर कंट्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आपको सुना है सर। वो आपकी लोकप्रियता तो पहले ही काफी हो चुकी है, अब आपके पास टाइम कम है। I convey my sincere gratitude and thanks to CA Rakesh Gupta ji, our worthy speaker, who has spared his valuable time in spite of being out of India. We really feel obliged, sir. आपकी जो इन डेप्थ नॉलेज है सब्जेक्ट की, कितनी सिंपलिसिटी से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, दैट इज वेरी मच एपरेंट फ्रॉम दैट। वी once again convey our sincere thanks to you from the bottom of our heart. My thanks are also due to our all members of the PTBA, our district taxation bar association members who has contributed to this, जिनकी सारी कंट्रीब्यूशन से, क्वेरी से ये सारा हमारा जो स्टडी सर्कल की मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। I would be failing in my duties if I do not convey my thanks to the present executive body and study circle body, जिन्होंने सारों ने मेहनत करके ये सारा किया। गुलशन वधवा जी को स्पेशल थैंक्स हैं, जिन्होंने लास्ट मिनट में राकेश गुप्ता जी के साथ सारा टाई अप करके ये कराया। Now once again I convey my sincere gratitude and thanks to all of you. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Thank you. Sir, now the house is open for any informal discussion. ਵਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 160 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ 60 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣ, क्योंकि असली नॉलेज जेडी है ना जनरल ता रीडिंग सारी मेंबर्स आर दे आर इक्वली क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल कि वो सारा खुद ता पढ़ के समझ ही सकते हैं, लेकिन while listening to all other colleagues their queries and to the replies to the queries given by the learned speaker will definitely add to the knowledge of the members. So this you kindly take note of and convey to the members through your messages that they must
joining the webinar till its end. सर एक चीज कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स आप मेंबर को इस चीज के लिए एनकरेज करें, बिकॉज आपके वर्ड्स का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो दे वैल्यू इट सो मच। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕਨਵੇ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵਿਊ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਸਟ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਸ਼ ਊਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀਪਲ ਮੇਡ ਮੀ ਸੋ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਸਭ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਦਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਐਡੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਐਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ दीजिए। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ